Hello students, today we are going to do the exercise and meaning of the lesson for children. Children written by H.W. Longfellow. We are doing new words that is given in the poem, and I am giving you the pronunciation and word meanings of the new words. First one is perplex. Perplex means परेशान होना. Next word is vanish. Vanish means अचानक गायब होना. नेक्स्ट वर्ड इज swallow. Swallow means एक छोटी चिड़िया, गौरैया. गौरैया जो गाँव में घरों में अपने आंगन में घूमते रहती है, ब्राउन कलर की चिड़िया जिसके ऊपर काली काली लाइंस रहती हैं. ब्रूक. ब्रूक मीन्स छोटी नदी या नाला. ऑटम. ऑटम मीन्स पतझड़ का मौसम. नेक्स्ट है विस्पर. विस्पर मीन्स फुसफुसाकर कहना. कंट्राइविंग. कंट्राइविंग मीन्स चतुर योजनाएं. नेक्स्ट वर्ड है केयरस. केयरस मीन्स हल्का चुंबन. जो छोटे बच्चों से बोलते हैं ना, पप्पी दे दो, दैट इज केयरस. बैलेड. बैलेड मीन्स कविता जिसमें कोई कहानी या कथा हो. ये मीन्स तुम. Now next we have word power of the lesson. The first one is match the words with their meaning. We have given two columns. First one is the new words and the second column is the column of meaning. First word is away. Away means we have 5 options, we can say. Away means first one is happy, no. The ability to make sensible decision, no. Sunny, to a different place, yes. Away means to a different place. Okay. The next one is sunny. Sunny मतलब सूर्य की किरणों से, सूर्य से प्रकाशित. तो अपना एक हो चुका है. तो पहला देखें, हैप्पी नहीं है. द एबिलिटी टू मेक सेंसिबल डिसीजन, ये भी नहीं है. विथ अ लॉट ऑफ ब्राइट लाइट, यस, बहुत सारी तेज रोशनी. ग्लैड, यस, ग्लैड को देखें, ये फर्स्ट वन से ही मैच कर जा रहा है हैप्पी से. फिर है क्वाइट. क्वाइट मीन्स होता है कंप्लीटली, पूरी तरह से. अब एक ही बचा है अपने पास, विजडम. विजडम मैच होगा द एबिलिटी टू मेक सेंसिबल डिसीजंस. अब अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द पोयम. The next question is complete the following lines of the poem. First one is given, come to me. It is the first line of the poem. Come to me, oh ye children. Yes. Next line it is given, and it is given in the fourth passage, fourth para of the fourth stanza of the poem. And whisper. Whisper in my ear. The very next line of the same, and whisper in my ear, what the birds and the winds are, and the winds are singing. The very next line, winds are singing, it is given, it is and the winds, what the birds and the winds are singing. The very next line of the same is in your
your sunny given in your sunny atmosphere. In your sunny, already sunny is given, here comes atmosphere. Yes, so we have completed the lines of the poem. Now we have given the question number C. Use the following words in your sentences. वैनिश मीन्स गायब हो जाना, तो यहाँ पर वैनिश का हम सेंटेंस बना, आपको मीनिंग में दिया ही हुआ है वैनिश। वैनिश हम बोल सकते हैं। यस, क्या होता है कि जब चोर आते हैं, चोर पुलिस को देखते ही गायब हो जाते हैं, तो इसका सेंटेंस यदि हम बनाते हैं तो सेंटेंस इस तरीके से बनता है, द थीफ vanished, sorry, the thief vanished after seeing the police. यस, नेक्स्ट सेंटेंस है, हमको ईस्टर्न वर्ड से बनाना है। ईस्टर्न यानी होता है पूर्वी, तो बहुत इजी है। द सन राइजेस इन ईस्टर्न, इन द ईस्टर्न होगा। हमेशा जब भी हम दिशा का नाम लिखते हैं तो उसके पहले द लगाते हैं, इन द ईस्टर्न साइड। यस, नेक्स्ट वर्ड है सनशाइन। नेक्स्ट वर्ड है सनशाइन। सनशाइन यानी होता है सूर्य की तेज रोशनी या चमकदार रोशनी। इसका हम लिख सकते हैं, चिल्ड्रन फील हैप्पी इन सनशाइन। बच्चे सूर्य की रोशनी में अच्छा महसूस करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ग्लैडनेस। ग्लैडनेस यानी होता है खुशी। द टीचर, sorry, the teacher, no, all the teachers we can say, the teachers feel gladness when their students get success. Teachers feel gladness when their students get success, है ना। जब विद्यार्थियों को सफलता मिलती है तो शिक्षकों को खुशी महसूस होती है। ऑटम एक सीज़न का नाम है, तो हम डायरेक्ट ये लिख देते हैं कि ऑटम किस सीज़न को हम बोलते हैं। ड्यूरिंग मार्च and April we have autumn in इंडिया। मार्च और अप्रैल में हमें ऑटम देखने को मिलता है भारत में।
So we have completed the sentences that we have to make from the given word. I am highlighting the given word. You can underline these words in your copy when you write it in your copy. Gladness. Next, autumn. Here we have completed our exercise of word power. क्या? What happens when the poet looks at the children playing? Answer is, when poet sees them playing, all his questions and worries that disturb him disappear. जब पोएट बच्चों को खेलते हुए देखता है तो क्या होता है? आंसर इज, जब पोएट बच्चों को खेलते हुए देखता है तो उसके सारे क्वेश्चंस और जो चिंताएं हैं जो उसे परेशान करती हैं वो गायब हो जाती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डू द विंडोज ओपन? खिड़कियाँ कहाँ खुलती हैं? आंसर है, विंडोज ओपन टुवार्ड्स द ईस्ट. विंडोज ईस्ट की ओर खुलती हैं. विंडोज यानी खिड़कियाँ, ईस्ट यानी पूर्व दिशा. वॉट लाइज इन द हार्ट ऑफ चिल्ड्रन? बच्चों के हृदय में क्या रहता है? आंसर है, इन द हार्ट्स ऑफ चिल्ड्रन देयर आर बर्ड्स एंड सनशाइन. बच्चों के हृदय में पक्षी और सूर्य की चमकदार रोशनी रहती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what does the poet compare to the caresses of the children and their looks? पोएट बच्चों की caresses, बच्चों के चुंबन से और उनके लुक्स यानी उनकी चेहरों से किसे कंपेयर करता है? किसकी तुलना करता है? आंसर है, द पोएट कंपेयर्स देम विथ ऑल आवर क्लेवर प्लान्स एंड विजडम ऑफ आवर बुक्स. पोएट तुलना करता है बच्चों की केयरेसेस और उनके लुक से हमारी सारी चतुर योजनाएं और हमारी सारी पुस्तकों की बुद्धिमताओं की तुलना वो बच्चों के केयरेसेस से करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू द प्रॉब्लम्स ऑफ द पोएट एंड वाई? पोएट की समस्याएं कब समाप्त होती हैं और क्यों? आंसर है, हिज प्रॉब्लम्स डिसअपियर व्हेन ही हियर्स चिल्ड्रन एट प्ले. उसकी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं जब वो बच्चों को खेलते हुए सुनता है. इट इज़ बिकॉज चिल्ड्रन आर प्योर हार्टेड एंड केयर फ्री. वो इसलिए होता है ऐसा क्योंकि बच्चे प्योर हार्टेड यानी पवित्र हृदय वाले होते हैं और केयर फ्री यानी उनको किसी बात का ध्यान नहीं रहता है. दे लव विदाउट एनी सेल्फिशनेस. बच्चे बिना किसी सेल्फिशनेस के, बिना किसी स्वार्थ के प्यार करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज द पोएट कंपेयर हिज हार्ट विद द हार्ट ऑफ चिल्ड्रन? पोएट अपने हृदय को बच्चों के हृदय से किस तरह तुलना करता है? आंसर है, देयर इज अ बिग कंट्रास्ट बिटवीन द हार्ट्स ऑफ पोएट एंड दोज ऑफ चिल्ड्रन. एक बड़ा कंट्रास्ट है. कंट्रास्ट यानी विपरीत चीज़ देखने को मिलती है पोएट के हृदय में और बच्चों के हृदय में. इन द हार्ट्स ऑफ चिल्ड्रन देयर आर बर्ड्स एंड सनशाइन, that is joy and hope, while in the hearts of poet there is wind of autumn and the first fall of the snow, that is despair and worries. बच्चों के हृदय में पक्षी हैं चहचहाते हुए एंड द सनशाइन, सूर्य की चमकदार रोशनी है. इसका मतलब जॉय एंड होप, खुशी है और उम्मीद है. वाइल यानी जबकि,
इन द हार्ट ऑफ पोएट, पोएट के हृदय में देयर इज अ विंड ऑफ ऑटम, वहाँ पर पतझड़ की हवा है जिसके चलने से पत्ते गिरते हैं। एंड द फर्स्ट फॉल ऑफ द स्नो, और पहली बार जो बर्फ गिरता है वो है, मतलब चिंताएं हैं, पत्तियों के गिरने की चिंताएं हैं, दुख है, डिस्पेयर यानी दुख है, और वरीज यानी चिंताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट हैज द ग्लैडनेस ऑफ द चिल्ड्रन कंपेयर्ड टू, डू यू एग्री विद द कंपैरिजन? व्हाट हैज द ग्लैडनेस ऑफ द चिल्ड्रन कंपेयर्ड टू, बच्चों की ग्लैडनेस, खुशी को किस चीज़ से तुलना की गई है? डू यू एग्री विद द कंपैरिजन, क्या आप कंपैरिजन से सहमत हैं? आंसर है द ग्लैडनेस ऑफ चिल्ड्रन इज कंपेयर्ड टू द स्वीटेस्ट सॉन्ग्स, बच्चों की ग्लैडनेस को तुलना किया गया है सबसे मधुर गीतों से। वी डू एग्री विद दिस कंपैरिजन, मैं इस तुलना से सहमत हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why does the poet say that the children are better than all ballads? पोएट ऐसा क्यों कहता है कि बच्चे सारे बैलेड्स, कविताओं से, जिनमें कथाएं दी हुई हैं, उनसे ज़्यादा बेहतर हैं? आंसर है द पोएट से so because the ballads are dead things while the children are living poems। पोएट ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि बैलेड्स मृत चीज़ हैं जबकि बच्चे जीवित कविताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट वांट द चिल्ड्रन डू विस्पर इन हिज ईयर? पोएट बच्चों से क्या चीज़ सुनना चाहता है अपने कान में फुसफुसाहट के द्वारा? आंसर है द पोएट वांट्स द चिल्ड्रन टू विस्पर इन हिज ईयर्स what the birds and winds are singing in their sunny atmosphere। पोएट चाहता है कि बच्चे आकर उसके कान में फुसफुसाएं कि पक्षी और हवाएं क्या गा रहे हैं उनके सनी एटमॉस्फियर में। सो चिल्ड्रन, हियर वी हैव completed our lesson 4, all the explanations, question answer and meanings we have completed. Now it's your time to write down all the exercise in your copy. Thank you.